جنگل کی ٹونی چڑیا اپنے بیٹے کے لیے فٹ بال لے کر آئی تھی شہر سے۔ وہ اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور جیسے ہی جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کو دیتی ہے۔ ارے یہ لو پکڑو اپنی بال اور جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، کل سے تم نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ لو لا دی میں نے، اب جاؤ اور کھیلو جا کے۔ اب مزہ آئے گا، اب مزہ آئے گا، اب تو میں جا کے جگو کے ساتھ کھیلوں گا، جگو نے کہا تھا فٹ بال لے کے آنا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن رات کو جلدی واپس آ جانا، بلکہ شام کو ہی آ جانا، رات نہ کر دینا، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ دور مت جانا، اب جاؤ۔ ہاں میں جلدی واپس آ جاؤں گا، زیادہ دیر نہیں کروں گا، فکر مت کرے، میں تو شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ جاؤں گا، اب میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں اپنی فٹ بال کا خاص خیال رکھنا، پھٹنے نہ دینا اس کو۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا کا بیٹا ککو اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ جنگل کے کھلے میدان میں جاتا ہے جہاں بہت ہریالی تھی، وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کالو کا بیٹا جگو تھوڑی دیر بعد ہی اپنی بائک پر ککو کے پاس آتا ہے۔ ککو تم آ گئے، یہ دیکھو میری نئی بائک ہے نا ایک دم مست، یہ میرے پاپا نے لے کے دی ہے مجھے کل ہی۔ ہاں بہت پیاری ہے، چل اب ہم اس فٹ بال سے کھیلتے ہیں دونوں مل کے، بہت مزہ آئے گا۔ جگو چل کھیلنا شروع کرتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو اس بائک پر گھومنے جانا ہے، اور ہاں میری بات سن، تیرے پاس تو اس طرح کی بائک ہو بھی نہیں سکتی۔ ہاں مجھے بھی نہیں بیٹھنا تیری اس گھٹیا بائک پہ، میں بھی گھر جا کے اپنی ماما کو کہوں گا اور وہ مجھے نئی بائک لے کے دیں گے، تو دفع ہو۔ اس کے بعد جگو اپنی بائک پہ شہر کی طرف گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے، جبکہ چڑا ککو واپس اپنی ماما کے پاس گھر میں جاتا ہے۔ ماما مجھے بھی ایک موٹر بائک چاہیے، بالکل جگو کی طرح، اس کو بھی اس کے ماما پاپا نے لے کے دی۔ لیکن بیٹا بائک تو بڑے لوگ چلاتے ہیں، بچے بائک نہیں چلاتے، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہت چوٹ لگتی ہے، سمجھ لگی بیٹا؟ لیکن جگو کی عمر بھی میری جتنی ہے اور وہ بھی بائک چلا لیتا ہے، تو میں کیوں نہیں چلا سکتا، مجھے بھی چلانی ہے۔ آپ کو ایک بار سمجھ نہیں لگتی کہ آپ بائک نہیں چلا سکتے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، ابھی تم جاؤ فٹ بال سے کھیلو ورنہ چوٹ لگے گی۔ اگر چوٹ لگے گی تو میں بائک نہیں چلانے والا، چوٹ نہیں برداشت ہوتی بھائی، چوٹ نہیں مجھے کھانی، میں تو فٹ بال سے ہی کھیل لوں گا۔ ہاں جبکہ دوسری طرف جگو وہ تو شہر میں آ گیا تھا، وہ یہاں وہاں گھوم رہا تھا اور مزے کر رہا تھا۔ ارے آج موسم بڑا سہانا ہے، میں تو شہر آ گیا، پہلی بار آیا ہوں زندگی میں شہر، آگے تک جاتا ہوں، پھر دوپہر ہوتے ہی گھر واپس چلا جاؤں گا۔ ہاں ارے میں آیا کہاں سے تھا، یہاں تو 2-3 راستے ہیں، اب میں گھر کیسے جاؤں، مجھے تو راستہ ہی بھول گیا۔ کہ تبھی وہاں سے ایک طوطا گزرتا ہے اور وہ جگو کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے میاں کیا ہوا، یہاں کیوں رکے ہوئے ہو، جاتے کیوں نہیں، راستہ واسطہ تو بھول نہیں گئے، اگر کوئی مدد چاہیے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ ہاں مدد چاہیے، میں جنگل سے آیا ہوں اور مجھے واپس جانے کا راستہ نہیں مل رہا، کیا آپ بتا سکتے ہو؟ ہاں میاں کیوں نہیں، یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، یہ والے راستے، تمہیں اپنے آپ جنگل مل جائے گا، مانو میری بات اور سیدھا جانا۔ بڑے چونچ والے طوطے، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے راستہ بتایا۔ اس کے بعد جگو کوا وہاں سے سیدھا چلا جاتا ہے۔ اب میں اسے مار مار کے اس کی بائک چھین لوں گا اور اسے بازار میں بیچ کر بہت پیسے آ جائیں گے، مہینے بھر کا راشن تو میرا آرام سے آئے گا اس میں۔ کے بعد وہ طوطا جو جگو کو پیٹنے والا تھا جنگل کی طرف جاتا ہے، اس نے جگو کو ایک سنسان پارک کا راستہ دے دیا تھا جہاں جگو رات کو کھڑا ہوتا ہے، وہ یہاں وہاں دیکھ رہا تھا اور کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے یہ میں کہاں آ گیا، اس طوطے نے مجھے کہاں پھنسا دیا، مجھے نہیں لگتا یہاں میں پہلے بھی کبھی آیا ہوں۔ اور میاں کیا حال چال ہے، اب اس بائک سے تو خود اترے گا یا میں تجھے پیٹوں، یہ بائک مجھے دے دے۔ یہ بائک نہیں میں دینے والا تمہیں، یہ میرے پاپا نے لے کے دی ہے مجھے، اسے نہیں دوں گا میں تمہیں، ہاں میری بات کان کھول کے سن لو۔ کسی نے صحیح کہا ہے میاں، ویسے لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہوتے، اب لاتے پڑیں گی تجھے۔ اس
इसके बाद वो तोता जग्गू कौवे को खूब पीटता है, उसको इतना पीटता है और उसकी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। जग्गू तो पीछे से रोना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जंगल में जग्गू के पापा यहाँ वहां घूम रहे थे। वो तो जग्गू को ढूंढ रहा था। कालू कौवा कभी यहाँ जाता और कभी वहां जाता। आखिरकार वो सीधा टोनी चिड़िया के पास जाता है क्योंकि कुक्कू उसका दोस्त था। अरे टोनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। चंगूर सुबह से घर नहीं आया, वो मोटर बाइक लेकर गया था और अभी तक नहीं आया। अंकल, वो शहर की तरफ गया था, मैंने उसको खुद जाते हुए देखा था। वो मुझसे कह कर गया कि मैं तुझे नहीं बिठाऊंगा और चला गया। कुक्कू तुम घर रुको, कालू जी आप मेरे साथ आए, हम जग्गू को ढूंढ के लाते हैं। वो यहाँ वहाँ ही होगा, जंगल से बाहर नहीं जाता वो। इस तरह कालू कौवे को तसल्ली देकर टोनी चिड़िया कालू को वहां से ले जाती है। सुबह हो जाती है। सब जंगल वाले जग्गू को ढूंढ रहे थे, लेकिन जग्गू तो शहर के उसी पार्क में बैठा होता है और फूट फूट कर रो रहा होता है। मिट्ठू तोता किसी काम से शहर आया था। वो देख लेता है जग्गू को और उसके पास आता है। अरे बेटा जग्गू, तुम यहाँ इतनी दूर अपने पापा के साथ आए हो क्या? रो क्यों रहे हो, बताओ कुछ। मैं अपने पापा की बाइक पर यहाँ अकेला आया था, लेकिन मैं वापस जाने का रास्ता भूल गया और फिर एक तोता आया जिसने मुझे गलत रास्ता बताया और रात को मेरी बाइक छीन ली मुझे पीट पीट कर। तुम्हें नहीं पता कि जंगल में अकेले नहीं आया करते, सब जंगल वाले सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब चलो, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई। सही कहते हैं आप, आइंदा के बाद मैं अकेला शहर कभी भी नहीं आऊंगा। यहाँ तो बहुत ही बुरे लोग रहते हैं, मैं कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे को जंगल वापस ले जाता है। इसी तरह कालू कौवे को वापस अपना बेटा जग्गू मिल जाता है और वो बहुत खुश था क्योंकि उसको अपना बेटा मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अगर छोटे हैं तो हमें दूर दराज अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुक्कू और उसकी माँ टोनी चिड़िया अपने घर में बैठे हुए थे। टोनी चिड़िया को बाहर खाना लेने जाना था। मुझे नहीं पता, मैं भी साथ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे लेके जाओ, बारिश हो रही है बाहर, मुझे जाना है। कुक्कू बेटा, मैं कल तुम्हें लाजमी लेके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। आज बारिश हो रही है, मैं कल तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है ना? लेकिन मुझे साथ जाना था, मजा आता। चलो कोई नहीं, कल ले जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम घर रहना और किसी के आने पर दरवाजा मत खोलना। ये सब कुछ कहकर टोनी चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है बारिश में, जबकि कुक्कू आहा, चली गई। अब मैं बाहर बारिश में जाऊंगा और मुझे तो कोई रोक भी नहीं सकता। अरे बल्ले बल्ले बल्ले। इसके बाद कुक्कू भी घर से उड़ जाता है और बाहर जंगल में बारिश में चला जाता है। वो अपने दोस्त कालू कौवे के बेटे के पास जाता है। और तुझे इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी नहीं आया जाता तुझसे, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ यहाँ। चल अब चलते हैं तंग करने। अरे मेरी तो मम्मा ने मुझे रोक रखा था, वो गई है तो मैं चुप करके आ गया हूँ। वैसे आज किसको तंग करने जाना है बताओ? आज हम बंटी कबूतर का घोंसला चोरी करके लाएंगे, ठीक है ना? नहीं, वो मेरी मम्मा को शिकायत कर देगा और मुझे डांट पड़ेगी। और नहीं, कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो ना। इसके बाद जग्गू कुक्कू को लेकर वहां से चला जाता है और बंटी कबूतर के घर की तरफ जाता है। वो बंटी कबूतर के घर से उसका घोंसला चोरी कर लेते हैं। वो जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो बंटी कबूतर भी वहीं से गुजरता है। वो उन दोनों को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता और घर जाता है। अरे ये इन्होंने क्या कर दिया, ये घोंसला मेरा चोरी करके ले गए, अब मैं क्या करूं? टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ, शायद अपने घर लेके गया हो, उससे शिकायत करता हूँ, वो समझाएगी इन दोनों को। ये सोचकर बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। टोनी चिड़िया अपने घर में नहीं थी। बंटी वहां जाकर आराम से बैठ जाता है और टोनी चिड़िया का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। उसको देखकर वो बोलती है, अरे बंटी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम यहाँ आए हो?
क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? कुछ हुआ है क्या जो इतने उदास हो? और क्या, आपके बेटे कुक्कू ने उस कालू कौवे के बेटे के साथ मिलके जग्गू के साथ मेरा घोंसला चुराया है। वो बहुत शरारती हैं। आप फिक्र मत करें, मैं भी कुछ करती हूँ। मैं भी कुक्कू के कान के नीचे लगाऊंगी, उसे सब अकल आ जाएगी। आप मेरे साथ चलें। टॉनी चिड़िया, साथ चलने की बात नहीं है। उस कालू का बेटा जग्गू बहुत शरारती है। वो बहुत चोरियां करता है और उसे घर से मार भी बहुत पड़ती है। ये कहकर टॉनी चिड़िया और बंटी कबूतर कुक्कू के पास जाते हैं। वो जब कुक्कू के पास पहुंचते हैं तो वहाँ जग्गू कौवा भी होता है। कुक्कू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने घर से बाहर मत निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब चलो, मुंह क्या बनाया है, घर चलो। टॉनी चिड़िया तो अपने बेटे कुक्कू को वहां से ले जाती है। अरे चल चल, तेरे साथ चलता हूँ, तुझे घर छोड़ाऊंगा और तेरी शिकायत भी लगा के आऊंगा। जो तू चोरियां करता है बाज आ जाएगा जल्द ही। इसके बाद बंटी कबूतर कालू कौवे के बेटे जग्गू को वहां से ले जाता है और उसके घर की तरफ जाता है। वो जब उसके घर पहुंचता है तो वो उसके माँ बाप से कहता है, अरे कालू, इस अपने बेटे को समझाया करो, ये चोरियां करता है। इसने आज मेरा घोंसला चोरी किया। इसको समझाते क्यों नहीं? तुम खुद तो तुम चोर हो। अरे कुक्कू बेटा, क्या तुमने वाकई ही चोरी की? बताओ जरा मुझे, अगर की है तो बता दो, कुछ नहीं कहूंगी मैं। मुझे शरारत सूझी तो मैंने की थी, लेकिन मैंने घोंसला वहां बाहर ही फेंक दिया था, दूर नहीं गया था मैं। बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। आइंदा के बाद भी ऐसे ही दूसरों का सामान चोरी करते रहना, ताकि तुम्हारे पास पैसा आए। और नहीं तो क्या, मैंने ही तो उसे चोरी सिखाई है। और बंटी, तू अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, समझा ना? तुम लोग खुद तो चोर हो और अपने बेटे को भी अपने जैसा बना रहे हो। वाह, क्या बात है। मैं तो जाता हूँ भाई यहाँ से। इसके बाद बंटी कबूतर भी वहां से चला जाता है, जबकि जग्गू अगले दिन मिठू तोते के घर जाता है। वो मिठू तोते के घर उसे परेशान करने जा रहा था। मिठू तोते की शादी होने वाली थी। वो अपनी पगड़ी लाया था। मिठू तो अपनी पगड़ी अपने दूसरे घोंसले में रख कर बैठा था कि तभी जग्गू वहां आ जाता है। वो मिठू की पगड़ी पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। मिठू उसको देख लेता है और जग्गू के पीछे जाने लगता है। वो जग्गू का पीछा करने लगता है कि वो पगड़ी लेके कहाँ जा रहा था। जग्गू मिठू को पूरा जंगल घुमा देता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आता। अरे मेरी बात सुनो, इस जग्गू ने मेरी शादी की नई पगड़ी चोरी की है। इससे मुझे वापस लेके दो। कालू, जल्दी करो। अरे बच्चा है, खेलने दो। तुम्हारा क्या है, तुम नहीं ले आना जाके। इतना मुंह क्यों बना रहे हो तुम? ये पगड़ी बहुत महंगी है और कल ही मेरी शादी है। मुझे तो अपनी शादी में ये पहननी है। मुझे नहीं पता, मुझको वापस करो। अरे मिठू, यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत पीटूंगा, समझा? यहाँ से चला जा अगर शक्ल बचानी है तो। कालू की धमकी सुनकर मिठू तोता तो वहां से चुपचाप चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, तुम आज घर बैठे हुए हो, क्या बाहर खेलने नहीं जाना? आज तो बाहर धूप निकली हुई है, आज तो तुम जा सकते हो। मुझे उस चोर जग्गू के साथ नहीं खेलना, वो बहुत बुरा है। वो चोरियां करता है और नाम मेरे पे डाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा। आप समझे, वो चोर है, चोर। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें कितनी बार कहा करती थी, लेकिन तुम ही भागे जाते थे बाहर। अब पता चल गया है ना, अब मैं कभी भी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। हाँ, और आज मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, झील के पास जाता हूँ। उसके पास तो खाने को बहुत कुछ होगा, चोरी कर लूंगा। जग्गू चील के घर की तरफ जाता है। जग्गू को नहीं पता था कि चील उसके बाप कालू से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो फिर बाज नहीं आता। चील सेब लेकर बैठी हुई थी कि तभी वहां कालू कौवे का बेटा जग्गू आ जाता है। वो उन सेबों को पकड़ता है और उड़ाकर ले जाता है। चील बहुत ज्यादा तेज थी। वो कालू कौवे के बेटे का पीछा करती है। वो जग्गू से सेब छीनना चाहती थी,
वो जग्गू के ऊपर आ जाती है और जग्गू को नीचे ले जाती है। वो जग्गू को वहीं पीटना शुरू कर देती है। वो उसको इतना पीटती है कि उसको वहीं मार डालती है। मैंने मांस खाना क्या छोड़ दिया, ये मेरे सेब भी चोरी करेंगे। अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, अगर अब कुछ हुआ तो। इसके बाद चील कालू कौवे के बेटे जग्गू को वहां से उठा के ले जाती है और उसे उसके घर छोड़ देती है। गोरी और कालू कौवा तो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जग्गू ने जैसा किया था अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ और कालू कौवे के साथ भी।